Greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं And one more time, by God's grace, we are with you all. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आपके सामने एक बार फिर से हम हैं। There might have been so many good people who might have passed away from this world, और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग थे जो शायद इस दुनिया से चले गए, but God has kept us alive लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवित रखा because He has a purpose for our lives. क्योंकि हमारे जीवन के लिए उसके पास में एक उद्देश्य है And that's why He has kept us alive. और इसी कारण से उसने हमें अभी तक जीवित रखा है। So let us look towards the God Almighty in His Word. और आइए हम उस सामर्थी परमेश्वर के वचन के अंदर में हम मनन करेंगे। And today I want to speak to you about the weapons fashioned against you shall not prosper. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन हथियारों के विषय में जो आपके विरोध में कार्य नहीं करेंगे। आपके विरोध में जो हथियार बनाए जाएंगे वो आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे. The weapons which are fashioned against you shall not prosper against you. और जो हथियार आपके खिलाफ बनाए जाएंगे वो आप पर प्रबल नहीं होंगे। Open with me the book of Isaiah, और मेरे साथ में खोलिए यशायाह की पुस्तक chapter 54, और उसका 54वां अध्याय and verses 14 to 17 I want to read. और 14 से लेकर 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Bible says, और बाइबल कहती है, You shall establish yourself in righteousness, rightness in conformity with God's will and order. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear and from terror, for it shall not come near you. Behold, they may gather together and stir up strife, but it is not from me. Whoever stirs up strife against you, you shall fall and surrender. Against you shall fall and surrender to you. Behold, I have created the smith who blows on the fire of coals and who produces a weapon for its purpose. And I have created the devastator to destroy, but no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that shall rise against you in judgment, you shall show to be in the wrong. This peace, righteousness, security, triumph over opposition is the heritage of the servants of the Lord, those in whom the ideal servant of the Lord is reproduced. This is the righteousness or the vindication which they obtain from me. This is that which I impart to them as their justification, says the Lord. और यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 14 से लेकर 17 तक इस प्रकार लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। Amen. यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। What a glorious God we bless, and we just serve Him and worship Him. और कितने ही अद्भुत परमेश्वर की आराधना और सेवा हम करते हैं। He's saying, और वो कह रहा है, no terror shall come to you. और कोई भी भय तेरे पास में ना आएगा, No fear shall come to और कोई you. भी डर तेरे पास में ना आएगा, People will gather together, stir up against you. और लोग इकट्ठा होकर तेरे विरोध में भीड़ लगाएंगे। Oh, they will be rising their, tongue in the judgment against you. और तेरे विरोध में जो है तेरे विरुद्ध गवाही देने के लिए वो अपनी आवाजों को उठाएंगे, But you will prove them wrong. लेकिन तू उन्हें गलत साबित करेगा। What a wonderful वो God. कितना ही अद्भुत परमेश्वर है। World may be very wide and very big. और जो संसार है बहुत ही बड़ा हो सकता है। Oh, we may not be knowing the exact number of the people who are living in the world. और हमें जो है एक पक्की जो है संख्या नहीं पता कि संसार में कितने लोग रहते हैं। Today we are living into the time of media. और आजकल हम मीडिया के समय में जी रहे हैं, And everybody, they can, do anything and everything, maybe against the church, against the leaders, against the believers. और वो जो है कलीसिया और विश्वासी और
प्रभुओं के विरोध में कुछ भी कर सकते हैं। But listen me carefully. लेकिन मुझे ध्यान से सुने, Bible says बाइबल कहती है they will gather together. वो एक साथ इकट्ठे हो But I जाएंगे, have not sent them. लेकिन मैंने उन्हें नहीं भेजा They है। have gathered together to come against the church. और वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं कलीसिया के विरोध To में come against the body of Christ. और मसीह की देह के विरोध में। But cheer up this morning. लेकिन आज की सुबह में आप जो है हर्षित हो Our जाए, God is saying, क्योंकि हमारा परमेश्वर कह रहा oh, है, you will see them falling before you. और तू अपने सामने में उनको गिरता हुआ What a देखेगा। wonderful God we are वो serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Maybe your own people are standing against और हो सकता है you. कि आपके खुद के लोग आपके विरोध में खड़े हो Maybe your जाएं, own family members will stand और against आपके you. परिवार के लोग ही आपके विरोध में खड़े हो Maybe जाएं, your relatives will stand against और हो सकता you. है आपके रिश्तेदार आपके विरोध में Maybe खड़े हो your जाएं, parents will stand against और हो you. सकता है आपके अभिभावक जो है आपके विरोध में हो जाए, Maybe your own spouse will stand against और आपके you. जीवन साथी जो है वो आपके विरोध में हो। They may prove that they are right and you are absolutely wrong, and you are eligible for punishment. और वो ऐसा सिद्ध करने लगे कि वो सही है और आप गलत है, और आपको दंड देने के लिए वो तैयार हो। But everybody who has stood against you लेकिन जो कोई भी आपके विरोध में खड़ा हो, has not come from the Lord. और वो परमेश्वर की ओर से नहीं, Because that's what the Bible says. और यही बाइबल हमको बताती है। Even he says, और वो यहाँ तक कहती the है, smith who is making these weapons, और वो लोहार जो इस हथियार को बनाता है, oh, even that person has been created by God. और वो व्यक्ति भी जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। The weapons which are made, they can be the devastators. और जो हथियार है वो जो है वो घातक हो सकते हैं। But God is saying one thing. लेकिन एक चीज परमेश्वर यहाँ Come कहता to है, the 17th verse. और 17वीं आयत में हम देखें, But no weapon that is formed against you shall prosper. लेकिन जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। Glory be to और God. परमेश्वर को महिमा मिले, Glory be to परमेश्वर को God. महिमा मिले। People will come against वो लोग you. आपके विरोध में आएंगे, People will stand against लोग आपके you. विरोध में खड़े होंगे, People will stand against and they will try to kill your lives. और लोग आपके विरोध में खड़े होकर आपके जीवन को नाश करना चाहेंगे। In the year 2004, और 2004 में in our state Madhya Pradesh, और हमारे मध्य प्रदेश राज्य में in one of the villages, और एक गांव में, Christian peoples were they were covered by the fanatic people, और जो मसीही लोग हैं वो जो है उपद्रवी लोगों के द्वारा जो है घेर लिए गए, and they wanted to kill the Christians. और वो जो मसीहियों को मारना चाहते थे, And when they were shooting the bullets, और जब वो गोलियां चला रहे थे, that time the bullets were coming out of the gun, और जो गोलियां है वो बंदूक में से निकल रही थी, and before 1 foot of a Christian person, that bullet was not striking, is not able to go and prick the body of a Christian man or a woman, but it was falling down. और जब बंदूक से वो गोली निकल रही थी तो मसीहियों के 1 फीट दूर के पास में जाकर रुक रही थी और नीचे गिर रही थी, और मसीहियों को कोई हानि नहीं हो रही थी, Because the weapon which was formed against them, क्योंकि जो हथियार उनके विरोध में बनाए गए थे, oh, they were not able to be working against them, prospering against them. और वो उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पा रहे थे। That is my God and that is your और यही God. मेरा परमेश्वर और यही आपका परमेश्वर So है। many people ask me, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, Pastor, can we take the license of the gun? और पासवान जी क्या हम वो बंदूक के लिए लाइसेंस ले सकते हैं? I tell them, और मैं उनसे कहता हूँ you can take, आप ले सकते हैं, but if God is not protecting you, लेकिन यदि परमेश्वर आपकी रक्षा ना करे, if God is not stopping the weapons which are coming against you to prosper, और यदि परमेश्वर ऐसा ना करे कि जो आपके विरोध में जो हथियार है वो प्रबल ना हो, oh, then definitely that gun which you will have with the license will of no use. और तो फिर निश्चित जो आपके पास में जो बंदूक है लाइसेंस वाली वो किसी काम की नहीं होगी। Oh, because when God stops someone's weapons, no weapon shall be able to prosper against you. क्योंकि परमेश्वर यदि किसी हथियार को प्रबल होने के लिए रोक दे तो कोई भी हथियार आपके खिलाफ जो है प्रबल ना होगा। And even Bible says, और यहाँ तक कि बाइबल में and हमको every बताते हैं, tongue that shall rise against you in judgment, you shall show to be in the wrong. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yeah, are people speaking against you? क्या आपके खुद के लोग आपके क्या लोग आपके विरोध में बोल रहे Are हैं? people making plans against you? क्या लोग आपके विरोध में जो योजनाएं बना रहे हैं? It is called plotting against you. और ये जो है आपके खिलाफ में आपके विरोध में योजना को बनाना है। षड्यंत्र है। Look, people may be making the plotting against और you. लोग आपके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे हैं, But there is a God लेकिन वहाँ परमेश्वर है who will prove that you are right and they are wrong. जो इस बात को सिद्ध करता है कि आप सही हैं और वो गलत है। What a powerful God we are serving this morning. कितने सामर्थी परमेश्वर की सेवा आज सुबह हम कर रहे हैं। Every tongue which is coming against you to speak. और हर एक जीभ जो आपके विरोध में बोलने के लिए खड़ी है, Every tongue which is speaking against the body of Christ. और हर एक जीभ जो मसीह की देह के विरोध में बोलती है, That shall be put to
wrong in Jesus' name. उसे यीशु मसीह के नाम से जो है गलत साबित होना That होगा shall not be proved right in Jesus' name. और वो यीशु के नाम से कभी भी सही साबित नहीं हो सकती Oh, because Father has given us that power. क्योंकि पिता ने हमको वो सामर्थ्य दी है What a wonderful वो God. कितना ही अद्भुत परमेश्वर है What a wonderful वो कितना God. अद्भुत परमेश्वर है Bible says, बाइबल कहती है this peace, righteousness, security, triumph or opposition is the heritage of the servants of the Lord. और परमेश्वर के दासों के लिए जो है शांति और धार्मिकता और सुरक्षा और जो परख है ये उनकी वसीयत है Victory over opposition और विरोधियों के खिलाफ में जीत को लेना is your portion. ये आपका भाग है Servant of the और Lord, परमेश्वर के दासों you should know it very well. आपको ये समझना आवश्यक है You are not under any power of the world. और आप इस संसार की किसी सामर्थ्य के नियंत्रण में नहीं है Satan may use people to bring against you. और शैतान जो है लोगों को आपके खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए ले सकता है But remember, लेकिन याद रखें your portion is peace. लेकिन आपका भाग जो है वो शांति है Your portion is और righteousness. धार्मिकता आपका भाग Your है portion is security. और सुरक्षा आपका भाग है Your portion is victory over the power of the enemy in Jesus' name. और शैतान के खिलाफ में विजय जो है यीशु मसीह के नाम से आपका भाग है That is your portion. और यही आपका भाग है As a child of और God, परमेश्वर की संतान होने as के a नाते servant of the Lord, परमेश्वर का दास होने के नाते who are those people? ये लोग कौन है Those in whom the ideal servant of the Lord is reproduced, means in whom Jesus Christ and his power and his presence is reproduced. और जिसमें पुनरुत्पादन करने की क्षमता होती है जिसके अंदर से यीशु मसीह जो है फिर से पुनरुत्पादित होता है वो Yes. परमेश्वर का दास है This is the righteousness or the vindication which they obtain from the Lord. और यही वो धार्मिकता है जो परमेश्वर के द्वारा से उनको प्राप्त होती है Glory be to God. परमेश्वर को महिमा When मिले you will go forward walking with God Almighty in the walk of righteousness, और जब आप धार्मिकता की राह में परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ते हैं definitely people will come against तो you. निश्चित रूप से लोग आपके विरोध में Be of आएंगे good cheer. और आप हर्षित हो जाएं But what is the meaning of weapon according to the KJV dictionary I want to quote? और किंग जेम्स का जो संस्करण है उसके हिसाब से वो हथियार क्या है जो बनाए गए हैं Any instrument of offense. और हर एक जो है वो घात करने वाली चीज जो है वो हथियार है Anything used or designed to be used in destroying और हर एक चीज जो नाश करने के लिए बनाई गई है or annoying an enemy. और उस किसी के विरोध में या विरोधी के लिए The weapons of rude nations are clubs, bhala, और जो भाला होता है वो and stones, और पत्थर and bows, और barn, बाण and maybe arrows, और तीर and modern weapons of war, maybe light machine guns. You know, it is not mentioned here, but I'm just adding to it guns, pistols, like that. और आधुनिक सारे हथियार जैसे बंदूक या फिर मशीन गन या आधुनिक जितने भी हथियार होते In हैं other words, और अन्य शब्दों में the weapons cannot be for goodness of the enemy, और जो हथियार होते हैं वो दुश्मन की अच्छाई के लिए या उसकी भलाई के लिए कभी नहीं but होते it is always for destroying the enemy. और वो हमेशा जो है वो शत्रु का नाश करने के लिए Bible says in the book of John chapter 8 and verse 32, और यूहन्ना उसके 8 के 32 में बाइबल बोलती है you shall know the truth and truth shall set you free. और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा Because we are not knowing truth, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते that's why we are always defeated. और इसलिए हम हमेशा पराजित होते हैं That's why Bible says in John 10:10, और यही जो है यूहन्ना 10 के 10 में बाइबल हमको बताती है the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. और इसीलिए यूहन्ना 10 के 10 में बाइबल हमको बताती है कि चोर चोरी करने नष्ट करने और घात करने के लिए आता है लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ When people are working against us, और जब लोग हमारे विरोध में कार्य करते हैं oh, we start to working against them. We start working against them. तो हम उनके विरोध में कार्य करना शुरू करते But हैं listen me लेकिन carefully. ध्यान से सुने Who is your enemy? लेकिन आपका शत्रु कौन You है need to understand. आपको समझने की आवश्यकता है Christians, वो मसीही हो oh, the Satan is your enemy. वो शैतान आपका दुश्मन है He is a liar. वो झूठा है He is a fool. और वो मूर्ख है He has been, thrown down from the heaven. और वो स्वर्ग से नीचे गिरा He दिया was a गया worshipper. और वो आराधक था Oh, because he was pumping himself. और वो अपने आप में फूला हुआ था And he was having a full of pride. और वो घमंड से भरा That's हुआ why he was thrown down. और इसीलिए उसको सिंहासन से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया That's गया why he started, destroying the human beings, which is the
creation of God's hand. और इसी कारण से परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई मानव जाति को उसने नष्ट करना शुरू किया। In other words, दूसरे शब्दों में, the enemy of God will be your enemy, और परमेश्वर का शत्रु आपका शत्रु है, and the friend of God will be your और friend. परमेश्वर का मित्र आपका मित्र है। Satan is not the friend of और God. शैतान जो है परमेश्वर का मित्र नहीं है, Satan is an enemy to और God. शैतान जो है वो परमेश्वर का शत्रु है, He stood against God. और वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा He हुआ, was thrown down. और वो नीचे गिरा दिया गया। Now he is below your feet, because in spiritual realm we are seated with the Jesus Christ in the heavenly places. क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम लोग आत्मिक रीति से जो है स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, इसी कारण से जो शैतान है वो हमारे पैरों के नीचे। Don't give Satan your head और- to make him the workshop for his work. और अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जो है शैतान की कार्यशाला होने के लिए आप मत दीजिए। No, but you know, his position is below your feet. That what is Bible saying in the book of Luke chapter 10 and verse 19. और लूका उसका 10 के 19 में बताता है कि उसकी जो जगह है, उसका स्थान है जो वो आपके पैरों के नीचे। Jesus said, I have given you the power and the authority to trample your enemy, all the scorpions and the serpents below your feet. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार देता हूं सांप और बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे कुचलने के Are लिए। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Your enemy is Satan. आपका शत्रु शैतान है, He came in the form of serpent before Eve. और वो हव्वा के सामने में जो है सांप के रूप में आया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? But you have a power over him. लेकिन आपके पास में उसके ऊपर में सामर्थ्य है, Adam and Eve could not trample him. और आदम और हव्वा उसको नहीं कुचल पाए, But you can. लेकिन आप कर सकते You हैं। are a child of आप God. परमेश्वर की संतान, You carry the presence of Jesus Christ. आप यीशु मसीह की उपस्थिति लेकर के चलते You हैं। are the child of Almighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. आप सर्वशक्तिशाली राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के संतान हैं, That's why you can trample him below your feet, because you are above him. और इसी कारण से आप उसको कुचल सकते हैं क्योंकि आप उसके ऊपर में हैं। But then we need to know what are those weapons he's using to attack on your lives. लेकिन उसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है कि वो कौन से हथियार है जो वो आपके जीवन के विरोध में इस्तेमाल करता है। First thing, पहली बात, he will have deception in your life. और वो आपके जीवन के अंदर में Dhoka. धोखे को लेके आता है। Bible says बाइबल बताती in है, the book of Genesis और उत्पत्ति की पुस्तक chapter 3 and verse 13. और 3 के 13 में, And the Lord God said to the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent beguiled, cheated, outwitted, and deceived me, and I ate. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। From the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक से। the work of enemy is to deceive you. और शैतान का काम आपको धोखा देना है, God wants to make you a very fruitful person. और परमेश्वर आपको फलवंत व्यक्ति बनाना But चाहता है। Satan wants to eat that fruits which are given into your life by God. लेकिन वो फल जो परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया है, शैतान उसको खाना चाहता है। You know, Adam and Eve were given all the plants to eat the fruit. और आदम और हव्वा के पास में वो सारे वृक्ष दिए गए थे उन फलों को खाने के लिए। But there was one, tree for that tree's fruit. They were, asked not to eat. लेकिन एक वृक्ष था जिसके फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया But था। Satan is a liar. लेकिन शैतान झूठा है, Satan is a और deceiver. शैतान धोखा देने He वाला है, gives the deceptions. और उसने वहां पर धोखा दिया, He uses the people to deceive your lives. और वो लोगों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन में धोखा देने The के लिए। first person he deceived, और पहला व्यक्ति जिसको धोखा दिया शैतान ने, oh, it was Eve. और वो हव्वा थी। Let us go to the book of Jeremiah और आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाएंगे, and chapter 9 and verse 6. और 9 के 6 में Bible says, वो बाइबल बताती है, your habitation is in the midst of decide, oppression upon oppression, and decide upon decide. Through decide, they refuse to know and understand me, says the Lord. और हम इसको देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत को। Yes, 9:6. तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है।
Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? The whole world don't want Jesus. और सारा संसार यीशु मसीह को नहीं चाहता, The whole world don't want Jehovah. और सारा संसार यहोवा परमेश्वर को नहीं The चाहता, whole world don't want Holy Spirit. और सारा संसार को पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। Why? क्यों? The world wants to do the operation. और क्योंकि जो संसार है वो छल चाहता है, It is full of oppression. और वो पूरे रूप से जो है पूर्ण रीति से छल से भरा The हुआ है। people who are in authority and power, और वे लोग जिनके पास में अधिकार और सामर्थ्य है, they are oppressing the normal and ordinary people. और वे जो है साधारण और सभ्य लोगों को छल से उनको ठगते हैं। But be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो जाएं, You are having an almighty God in your life. और आपके जीवन में सर्व सामर्थी परमेश्वर He वो works. कार्य करता He है, works through your life. वो आपके जीवन के He द्वारा works कार्य in करता and through your life. है, और वो आपके जीवन के अंदर आपके People जीवन के want- द्वारा से काम करता People है। want to oppress and oppress. लोग छल और सिर्फ छल करना चाहते हैं, But God will lift you up. लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर 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 और ऊपर उठाता Why है। Satan oppresses ओ you? क्यों शैतान आपके He is साथ a में छल करता है? deceiver. क्योंकि वो धोखा देने वाला है, Hey, Satan और deceiver. शैतान धोखा देने That's वाला why है, he comes to deceive your lives. और इसी कारण से वो आपके जीवन में धोखा देने When के लिए God आता है। forgives your sins. लेकिन जब परमेश्वर जब आपके पापों के लिए क्षमा करता है, Oh, Satan says, शैतान बोलता है, no, that day you sinned that one. और शैतान बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तूने उस दिन वो पाप किया था, Turn back and tell Satan, और आप जो है वापस घूम के आइए, शैतान से कहिए get lost from my life. मेरे जीवन से बाहर चला जा, My Jesus is a complete और मेरा savior. यीशु मसीह पूर्ण उद्धार करता है, My Jesus is a forgiver और मेरा God. यीशु मसीह जो है माफ करने वाला He परमेश्वर, forgives and forgets. वो माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, भूल जाता है। Oh, he just put our sins behind his back. वो अपने पीठ के पीछे, अपने पीछे हमारे पापों को छोड़ He देता है, takes our sins from east to the west, that much of far distance. और वो हमारे पापों को हमसे पूर्व से पश्चिम जिस तरह से दूर है, वो हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता But है। Satan says, लेकिन शैतान your बोलता है sins have not been forgiven. कि तेरे पाप क्षमा नहीं किए गए, Tell him, उससे कहिए you are a liar. तू झूठा है, That's why you are deceiving. इसी कारण से तू धोखा दे रहा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, we are into a world now. हम इस ऐसे संसार में हैं, People are deceiving you. लोग आपको धोखा दे रहे हैं, Your own people will deceive you. आपके स्वयं के लोग आपको धोखा, People are good, लोग अच्छे हैं, but Satan is a cunning one. लेकिन शैतान धूर्त है, And he is actually, continuously trying to deceive your life. और वो लगातार आपके जीवन में धोखा देने के लिए कार्य करता है। Second thing, दूसरी बात, open with me the book of Mark chapter 4 and verse 19. मरकुस 4 और उसका 19वां निकालेंगे। 4:19 of Mark. मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत। The second thing, the Satan is bringing in your lives, और दूसरी बात जो शैतान आपके जीवन में लेकर के it आता is है, a distraction. और वो जो है आपके जीवन से किसी ध्यान को हटा देना, And he want to bring the distractions. और वो आपके ध्यान को जो है हटा देता है। Bible says, बाइबल बताती है, then the cares and anxieties of the world and distractions of the age and the pleasure and delight and false glamour and deceitfulness of riches and the craving and passionate desire for their things creep in and choke and suffocate the word and it becomes fruitless. और यहाँ पर हमको वचन बताता है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? God has called you to be the fruitful people. परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए God बुलाया, has called you to do the fruitful ministry. और परमेश्वर ने आपको फलवंत सेवकाई के लिए God बुलाया, has called you to do the fruitful jobs and professions and businesses. और परमेश्वर ने आपको फलवंत व्यवसाय, फलवंत But it नौकरी is के लिए just बुलाया। impossible without abiding in the word of God. You will have the distractions from the Satan. लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में ना बने रहे तो शैतान आपके जीवन से उन सारी चीजों को हटा देता, आपका ध्यान वहां से हटा Bible देता है। says बाइबल बताती in है, the book of John chapter 15 and verse 4, और यूहन्ना उसके 15 के 4 में, if you'll abide in और me, यदि तुम मुझ में बने रहो, Jesus said, if you'll abide in me, और यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो you will bring much fruits. तो तुम और फलवंत हो जाओ। God has called you to be fruitful through Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको फलवंत होने के He लिए is the बुलाया। word of God. वो परमेश्वर का वचन है, He is the light of the वो world. संसार की ज्योति है, Oh, he is your blessing and he is the blessed one in your life. और वो आपके
आपके लिए आशीषित और आपके लिए आशीष है। Oh, that what the word of God says. और यही परमेश्वर का वचन When you will बताता है। abide in Jesus, जब आप यीशु में बने रहते हैं oh, you will bear the fruit. तो आप फलों को लेकर के And आते that हैं fruit will be sustained. और वो फल आप में बने रहते Are हैं। you understanding me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? Without the word of God, परमेश्वर के वचन के बिना your fruit will not be sustained. आपके वचन आपके फल आपके जीवन में बने नहीं रह सकते। And when you are in the word of और God, जब आप परमेश्वर के वचन में बने not only you will bear the fruit, तो आप केवल फलवंत नहीं oh, होंगे, but that fruit will be sustained. लेकिन वो फल आप में बने If रहेंगे। you'll abide in the word of और जब God, आप परमेश्वर के वचन में बने रहते, Holy Spirit will stay in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में बना Listen me carefully. ध्यान से सुने, Where there is no Jesus Christ, जहाँ पर भी यीशु नहीं है oh, the Holy Spirit will not work. पवित्र आत्मा कार्य नहीं When you करेगा। will glorify जब Jesus, परमेश्वर को यीशु मसीह को महिमा दे, Holy Spirit will come in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में And He will आता है start working and helping you. और वो कार्य करता आपकी सहायता करना Are शुरू you करता है। understanding? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? If you are doing ministry और यदि आप सेवकाई कर रहे हैं without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना without the vision, और बिना दर्शन के oh, without the biblical patterns, और बाइबल के पथानुसार यदि नहीं है or without the word of और God, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है it will not be sustained. तो वो बना नहीं रहेगा, It will not be ये sustained. बना नहीं रहेगा। In today's world, आज के संसार में Holy Spirit is enabling you to do the ministry in a power and awesome way. और आज के संसार में पवित्र आत्मा आपको योग्य बनाता है कि आप अद्भुत रीति से आपकी सेवकाई को Holy कर पाए। Spirit enables you पवित्र आत्मा आपको योग्य बनाता so है that you can bring the much of the fruits through Jesus Christ. ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा से और अधिक फलवंत हो जाएं। But listen me carefully. ध्यान से सुनिए। Satan is bringing the distraction. लेकिन शैतान जो है आपके जीवन से जो है नाश करने को या आपके ध्यान भटकाने को लेके आता What है are those distractions? और वो ध्यान भटकाना वो नाश करना क्या है Advertisements. और वो जो है विज्ञापन है You know, these days, आज के संसार में। it is said in India, और भारत में इस प्रकार से बोला जाता है whatever will be seen, और जो कुछ देखा जाता है that will be only sold. केवल वो ही बेचा जाता Are है। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? जो दिखता है वही बिकता है. If something is not seen, और यदि कोई दिखता नहीं है it will not be sold. तो वो बिकता भी नहीं है। Advertisement brings good, system of Satan into our minds. और विज्ञापन एक ऐसी चीज है जो शैतान हमारे दिमाग में अच्छे से देता है। Okay, many times, some numbers are sending good, persons some of the messages which are very destroyable. और कुछ ऐसे संदेश होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे जाते हैं जो बहुत ही नष्ट हमारे ध्यान को जो है वो अलग कर देते हैं परमेश्वर से। Distraction comes. और जब वो जो है हमारा ध्यान किसी और चीज में चले जाता है परमेश्वर के अलावा, So you know why? जानते क्यों आता है? Message is coming. If you play rummy, you will have 2,000 immediately. और वो संदेश इस प्रकार से आता है कि यदि आप रमी खेले तो आप तुरंत जो है 2000 रुपए जीत जाएंगे। Indian mind is very clever to go behind. और भारतीय मानसिकता इसके पीछे चलने वाली है Because they don't want to work sometime, क्योंकि कई बार वो काम नहीं करना but they चाहते want to earn more. लेकिन वो ज्यादा कमाना चाहते But हैं। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है when Adam fell in sin, जब आदम पाप में गिरा God said, परमेश्वर ने कहा you will eat the bread of your sweat of your forehead. और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया Are you करेगा। understanding me? क्या आप सुन रहे हैं? Don't go behind the और world. इस संसार के पीछे ना It जाइए। is inviting people through the advertisement. वो ये विज्ञापन के द्वारा से लोगों को आमंत्रित करते हैं Fraud news channels and newspapers. और वो जो गलत समाचार देने वाले अखबार है और जो चैनल है, Media is destroying the lives of people. मीडिया लोगों के जीवन को नाश कर रही It है is distracting them from और वो God. परमेश्वर के पास से लोगों को हटा रही है। Oh, there are films which are going in the और world. बहुत सारी फिल्में हैं जो इस संसार में हैं। Serials are there. बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं। Every false media. हर एक झूठा मीडिया They are taking away your concentration from God. और वो आपका ध्यान परमेश्वर से अलग करते हैं They are the distractions of the और वो world. इस संसार के लिए जो है नष्ट करने वाली Are you बात है। understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? We are into the last days times. और अब हम अंतिम दिनों में हैं Satan will distract your life. और शैतान आपके जीवन को नष्ट कर It रहा is है another weapon of Satan. और ये एक और हथियार है उस शैतान का। But we need to understand. लेकिन हमें समझने की आवश्यकता If है we will be, become the football in that distraction. और यदि हम वो फुटबॉल बन जाए उस नष्टता के बीच So में, sometimes he will put us into this goal and sometime into that goal. तो कई बार जो शैतान कभी हमको इस दिशा में लेके जाएगा, कभी उस दिशा में लेके But जाएगा। God has called you to be fruitful. लेकिन परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए बुलाया। That fruit comes only through
Jesus Christ alone. और वो फल केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा से मिलता है। Third thing, तीसरी बात, the third weapon is delay. और तीसरी बात जो है विलंब। Open with me the book of Daniel और मेरे साथ में खोले दानियल की पुस्तक and chapter 10 and verse 12 and 13. और दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 10वां अध्याय 12वीं आयत और 13वीं आयत. Bible says, then he said to me, fear not, Daniel, from the first day that you set your mind and heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come as a consequence of and in response to your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me for 21 days. Then Michael, one of the chief of the celestial princes, came to help me, for I remained there with the king of Persia. और यहाँ दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12 और 13वीं आयत इस प्रकार बताती है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। Hallelujah. हालेलुया। Which princess of enemy is delaying your blessings? Which princess of demons are delaying your blessings? और उन दुष्टात्माओं का वो प्रधान। कौन सा प्रधान है जो आपके कार्यों में विलंब पैदा कर रहा है। Remember one thing. और एक चीज हमेशा याद रखें, Daniel was more righteous than us. और दानियल हमसे ज्यादा धार्मिक था, He used to pray 3 times a day. और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। That's why the angel of the Lord came to take his blessings. और इसीलिए परमेश्वर का दूत उसके लिए आशीष को लेकर के But आया। then Satan was delaying. लेकिन शैतान विलंब कर रहा था, Satan's princes were delaying. और शैतान का जो प्रधान था वो विलंब करवा रहा था। When we pray, जब हम प्रार्थना करते Satan stops sometimes, power that the blessing should not come to us. और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान उन आशीषों को हमारे पास में आने से रोकता है। But be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो जाए, Satan cannot stop your blessings forevermore. लेकिन शैतान आपकी आशीषों को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। And Daniel was praying 3 times a day. और दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, Still, उसके his बावजूद blessings were stopped for 21 days. उसकी आशीषें 21 दिनों तक रुकी। From how many days your blessings have not come to you? कितने दिन हो गए जो आपकी आशीषें नहीं आ रही है? How मनी times you have been praying and praying and praying, but your blessings are not coming on your वो way. कितने बार आप प्रार्थना करते लेकिन आशीषें आप तक नहीं आती। You may be praying for the peace of your family. और आप अपने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना You may be praying for winning the bread for your family. और आप अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए In this प्रार्थना pandemic, करते। इस महामारी में so many breadwinners have lost their lives. और बहुत सारे कमाने वालों ने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया। Oh, families are in a very negative side. और जो परिवार है बहुत ही नकारात्मक दिशा में, They are waiting and praying, but no answer is coming. Listen me carefully. It is Satan and the demons which are stopping your blessings. But be of good cheer. God can send the angel and even the chief of angel to deliver your blessings at your footstep. और आज के समय में परिवार जो है प्रतीक्षा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लिए रोज की रोटी कमाने वाला कुछ हो, लेकिन शैतान जो है उनके आशीषों को रोक रहा है, लेकिन वो हमेशा उनके आशीषों को नहीं रोक पाएगा। You may be praying for a financial breakthrough. और आप जो है उन आर्थिक विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You may be praying for your promotions. आप अपनी पदोन्नति के लिए प्रार्थना You कर may रहे be हैं। praying for a new appointment. और आप एक नए अवसर के लिए You प्रार्थना may कर be रहे हैं। praying for your employment. और आप अपने रोजगार के लिए प्रार्थना कर Oh, रहे you may not be getting it. हैं। और आप हो सकता है कि प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। Listen me लेकिन carefully. ध्यान से सुने, Your God is the one who hears. और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सुनता है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है। Daniel, it was told. और दानियल को ये बताया गया, Then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your mind and heart to understand, to humble yourself before your God, your words were heard. Your God has heard your prayer and your words. Whatever you have been praying all these years, maybe months and weeks and days together. क्योंकि दानियल को बताया गया, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण
आ गया हूँ क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। Very first day. सबसे पहले दिन, First day when you first time you pray for something. और पहले दिन जब आप सबसे पहले किसी चीज के लिए प्रार्थना करते God हैं, hear your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। Don't blame God. परमेश्वर के ऊपर में दोष मत लगाएं। God has a ear. परमेश्वर के पास में कान है And he hears our और वो prayer. हमारी प्रार्थनाओं को सुनता Bible है। says very first time when you prayed. और बाइबल बताती जब पहली बार तूने प्रार्थना किया, What was that first time you prayed for something? वो पहली बार वो कौन सा समय था जब आपने प्रार्थना किया? God wants to give that everything. परमेश्वर आपको वो सब चीज देना चाहता But there is a delay on the part of the है, enemy. लेकिन वहां पर शैतान के द्वारा से वहां पर विलंब है, Your enemy is stopping your blessings. क्योंकि आपका शत्रु आपकी आशीषों को रोक रहा है। Send angels. और स्वर्गदूतों को भेजिए। Hebrew 1:14 says, इब्रानियों 1:14 बताता God है, has given us the ministering angels. और परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल के लिए स्वर्गदूतों को दिया है। You command them आप उनको आज्ञा दें, and you tell them आप उनसे कहें, those delays which Satan has brought into my life, और वे विलंब जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के that आता है I could not get my blessing. और मैं उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाऊं। Even people who are waiting for the marriages because of pandemic, marriages are getting late and late and late. और लोग जो है इस महामारी के कारण से अपने विवाह के लिए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि महामारी की वजह से विवाह विलंब और विलंबित होते जा रहे हैं। Send the angels, command them in Jesus' name to just pull down all the power of the enemy which is stopping your blessing. और उन स्वर्गदूतों को आप आज्ञा दीजिए कि वो शैतान की उन सारे विलंब वाली सामर्थ्यों को नीचे खींच ले, ताकि आपकी आशीष जो है वो आप तक आ जाए। By God's grace, in a very posh location of Bhopal, I am residing from last 7 years. और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से भोपाल के एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ पिछले 7 सालों से। It's a government colony. और ये सरकारी आवासीय क्षेत्र And है। you know, I did not find any kind of theft in this area. और मैंने इस क्षेत्र में किसी प्रकार का जो है वो धमकी नहीं मिली है, डर नहीं हुआ, डर नहीं चोरी है। नहीं देखी. Theft is chori. Okay. Okay, so you know, 2 years before, और 2 साल पहले I bought a very good new bicycle for my son. और मैंने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छी साइकिल खरीदी, After 2-3 months, और 2-3 महीने के बाद somebody stolen it. और किसी ने उसको चुरा लिया। And then I was reminded of one pastor who prayed in Kerala to send the angels to take charge of everything which his family is having for security. और मैंने याद किया कि केरल के एक पासवान जो अपने परिवार की हर एक चीज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे स्वर्गदूतों को भेज के। If mobile is stolen, और यदि मोबाइल चोरी हो गया है, can be tracked by EMEI number. क्या वो EMI नंबर के द्वारा से उसको पकड़ा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है? If vehicle is stolen, और यदि कोई वाहन चोरी हो जाए, it can be it can be caught by its engine number, chassis number, and registration number. और यदि कोई वाहन चोरी हो जाता है तो वो उसके इंजन की संख्या, उसकी चेचिस की संख्या या उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण संख्या होता है, उससे वो उसको पकड़ा जाता है। But how can you catch somebody who has stolen the cycle which don't have any identity? लेकिन आप उस व्यक्ति को कैसे पकड़ेंगे जिसने साइकिल की चोरी की, क्योंकि उसके पास में उसकी कोई पहचान नहीं है साइकिल की। My son used to say, और मेरा बेटा ऐसा बोलता था, buy me another cycle. और मेरे लिए एक दूसरी साइकिल लेके आए। I said, my God will provide you the same cycle. और मैं कहता था कि मेरा परमेश्वर तुम्हें वही समान साइकिल I देगा। said to the angels, मैंने स्वर्गदूतों से कहा, strike those persons who have stolen this bicycle, और उस व्यक्ति को कोड़े मारो जिसने भी इस साइकिल को चुराया, because it has been stolen from the house of the Lord. I am the servant of Most High. और क्योंकि मैं सर्वोच्च परमेश्वर का दास हूँ, उसने परमेश्वर के घर से चोरी किया। 1 month went. 1 महीना चला गया। After some time, कुछ समय के बाद policeman came to my home, और एक पुलिस वाला व्यक्ति मेरे घर पे आया, and your cycle has been found, sir. और उसने कहा कि महोदय जी आपकी साइकिल मिल गई है, And identify which is the one. और उसने कहा कि पहचानिए इनमें से कौन सी है। Why? क्यों? Because of our prayers, क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा से our neighbors' bicycles which were stolen also, और हमारे पड़ोसियों की जो साइकिल चोरी हो गई they were वो भी वापस आ गई, 5 bicycles were brought back. और 5 साइकिलें वापस आ गई। That is my God and your God. यही मेरा और आपका परमेश्वर। Satan will delay, शैतान विलंब करता but है, God will bring the blessings in right time. लेकिन परमेश्वर सही समय पर आशीष We identified our bicycle हमने अपनी साइकिल को पहचाना, and we took it. हमने ले लिया। So angels are following your command.
और जो स्वर्गदूत है वो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। But you need to understand what is your power in लेकिन Jesus. आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपकी सामर्थ्य यीशु मसीह But में then है। why our prayers are not being heard? लेकिन क्यों हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता? Because we are not making ourselves humble. क्योंकि हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते We are not having faith. और हमारे पास में विश्वास नहीं है। That's why according to Hebrew 11:6, तो इसी कारण इब्रानियों उसके 11:6 के अनुसार God is not pleased in our वो lives. परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं है। 1 Thessalonians chapter 2 and verse 4. वो पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 आयत में, Our purpose must be to please और God. हमारा उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना होना How चाहिए। He is pleased in our वो lives. कैसे वो हमारे जीवन के द्वारा से प्रसन्न होता है? When we are humble before और Him, जब हम उसके सामने में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, then we have faith on Him. उसके बाद हम उस पर विश्वास करते हैं, And then we are, pleasing और God. उसके बाद हम परमेश्वर को प्रसन्न होते Then we will say, Lord, send the angels. God will send the हैं। और उसके angels. बाद जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजिए तो भेजता है। Fourth thing, चौथी बात, the next weapon is disappointment. और निराशा जो है वो अगला हथियार है। Open with me the book of Genesis chapter 40 and verse 14. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे। 40 and 14 of Bible says, but think of me when it shall be well with you, and show kindness, I beg of you to me, and mention me to Pharaoh, and get me out of this house. और हम यहाँ देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर में मुझे छुड़वा देना। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Joseph was caught, तो यूसुफ जो है पकड़ाया गया, and he was not having any kind of sin in his life. और उसके जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, But he was caught and put behind the bars. और लेकिन वो पकड़ा गया और बंदी गृह में डाला गया। But there was another person लेकिन एक और व्यक्ति who was the chief butler, और वहां पर वो Pilanehara. हाँ, पिलाने आ रहा था। Open with me the same chapter and the 23rd verse. और समान अध्याय का आप 23वीं आयत देखें। But even after all that, the chief butler gave no thought to Joseph, but forgot all about him. फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। Joseph did good things, और यूसुफ ने अच्छी चीजें वहां पर not की, bad things. गलत चीज नहीं किया। But he's just asked chief butler to remind to Pharaoh. लेकिन उसने सिर्फ इतना मांगा उस पिलाने हारों के प्रधान से कि वो फिरौन के सामने में उसको याद हो। But he forgot when he came out of the prison. लेकिन जब वो बंदी गृह से बाहर आया तो वो भूल गया। Many times you do good to the people, और कई बार आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, and when you do good, लेकिन जब अच्छा करें, when they are in good time, जब वो अच्छे समय में हों, they will forget you. वो आपको भूल जाएंगे। But be of good cheer. लेकिन आप निराश में तो ये हर्षित हो जाए, If they are not with you, यदि वो आपके साथ नहीं है। God has not planned their lives to be with you. परमेश्वर ने योजना नहीं बनाई कि वो आपके सामने If they साथ left में you, रहे। यदि वो आपको छोड़ दे, God will never leave you. परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। But then another work is, the weapon is disappointment. और एक और जो हथियार है वो निराशा है। Who is Joseph? और वो यूसुफ कौन है? Man of righteousness. धार्मिकता वाला व्यक्ति, Oh, man who is filled with the presence of God Almighty. परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहने वाला व्यक्ति, He did everything. सब चीजें वो करता था। Go to this chapter of 40th chapter of Genesis. You will know how Joseph did everything. और आप उत्पत्ति की 40वें अध्याय से पूरा होकर के जाइए, आप देख पाएंगे कि कैसे यूसुफ अच्छे कार्यों को Many करता था। times we do good things, but still people when do good or they disappoint us, we are broken and contrite in our hearts. वो कई बार हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन लोग जब उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, अच्छे स्थान पे पहुंच जाते हैं, वो हमको निराश कर देते हैं, हमको भूल कर। Because it is a weapon of Satan. क्योंकि ये शैतान का हथियार है, It is a weapon of Satan. वो शैतान का हथियार है। And the Bible says in Psalm 34:18, और भजन संहिता 34 के 18 में बाइबल बताती the है, Lord is near unto them that are of a broken heart, and saves such as be of contrite spirit. और वे जो आत्मा में जो दुर्बल है और जो मन के टूटे हुए हृदय के टूटे हुए लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ में रहता है। Are you broken in your spirit? क्या आप अपने आत्मा में टूटे हुए Are हैं? you contrite in your spirits? क्या आप अपने
आत्मा में दुखित है, Has somebody broken your heart? क्या किसी ने आपके हृदय को तोड़ा, Be of good cheer. तो आप हर्षित हो जाइए। Your God is there to save your life. आपका परमेश्वर वहाँ है आपके जीवन को बचाने People के will लिए। disappoint you परमेश्वर लोग आपको निराश because करेंगे, they are operating in the weapon of Satan that is called disappointment. क्योंकि वे लोग शैतान के उस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं जो निराशा है। But listen me carefully. लेकिन ध्यान से सुने, Disappointments are also allowed by God. Without that, it will not come into our और lives. निराशा भी बिना परमेश्वर की अनुमति के हमारे जीवन में नहीं आ सकती। If they are properly faced, और यदि ये वहाँ पर एक अच्छी तरीके से हो, then disappointments will make your characters very powerful and strengthened. यदि सारी चीजें सुव्यवस्थित हो तो निराशा आपके जीवन के अंदर में बहुत सामर्थ को लेकर के आता है। You will grow in faith. आप विश्वास में मजबूत You होते will हैं, grow in confidence on God. आप परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होने के लिए आप बढ़ते हैं, And because of all these things, और इन सारी बातों के कारण you will have patience in your life. आपके जीवन में धैर्य आता है। Christians, मसीह, we need to keep the patience in your life. हमें हमारे जीवन के अंदर में धैर्य को We रखना have to be the people of patience. हमें संयमी लोग बनना। That's what the Bible says in the book of Romans chapter 5 and verse 3 and 4. रोमियो उसके 5वें अध्याय 3 और 4 के अंदर में बाइबल हमको यही बताती So है। disappointments is another weapon of Satan. और निराशा एक और हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता When it है। comes, जब यह होता है आता है, oh, it will kill the people mentally. ये लोगों को मानसिक रीति से नष्ट करता In है। the time of disappointments, और इस निराशा के समय people are unable to think the good things. लोग अच्छी चीजें सोचने के लिए योग्य नहीं होते। But be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो If you जाएं, are broken in your spirit, यदि आप अपने आत्मा में टूटे if हुए, you are contrite in your spirit, यदि आप अपने आत्मा में दुखित हैं, if people have broken your heart, और यदि लोगों ने आपके हृदय को तोड़ा है, God is there to save your life. परमेश्वर वहां पर है आपके जीवन को बचाने। Satan may not bring, continuously disappointments always. और हमेशा शैतान आपके जीवन में निराशा नहीं ला पाएगा। So that is another weapon of Satan. और ये एक और हथियार है शैतान का। Next, अगला the Satan brings another weapon, एक और हथियार है, that is discouragement. और वो हतोत्साहित करता है। While some people are having disappointments, और जब कुछ लोगों के पास में निराशा होती है, but then some people have discouragements also. लेकिन कुछ लोगों के पास में हतोत्साहन भी होता है। But that time, उस समय your attitude must be right with Jesus Christ. आपका स्वभाव यीशु मसीह के साथ में सही होना That's what चाहिए। Bible says. यही बाइबल बताती है। Because the enemy will bring the discouragement against you. क्योंकि जो शैतान है, जो शत्रु है, आपके जीवन में हतोत्साहन को लेकर But के आएगा। then we should not be discouraged. लेकिन हमको हतोत्साहित नहीं होना है, We should not be हमें discouraged. हतोत्साहित नहीं होना है। There was a time in my life, वो मेरे जीवन में एक समय था, in the year 2009, 2009 में, and 7 months I did not receive any of the financial, money in my hands. 7 months. 7 महीनों तक मेरे पास में किसी प्रकार की आर्थिक So- वेतन या स्रोत नहीं था। And somebody met me. वो कोई मुझसे मिला, He was my authority. और वो मेरा अधिकारी था। And he said, उसने कहा 7 months have gone, 7 महीने चले गए, and I could not see any kind of, work on your forehead. और मैंने तुम्हारे माथे पर चिंता की एक भी शिकन नहीं देखी। Automatically, Holy Spirit spoke to him. और तुरंत ही पवित्र आत्मा ने उससे बात की, That person was not Christian. और वो व्यक्ति मसीह नहीं। I said, मैंने कहा, God is bigger than your persecutor. और परमेश्वर आपके सताने वालों से बड़ा है। Are you understanding me? आप समझ रहे हैं? People will bring, discouragements. और लोग हतोत्साहन को लेकर Why? आते हैं। Why? क्यों? They are the agents of Satan. क्योंकि वो शैतान के अभी करता है. अभिकर्ता है। Satan will use them वो शैतान उनको इस्तेमाल करता to है bring the discouragements in your lives. आपके जीवन में हतोत्साहन को लेकर के आने के But लिए। be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो जाएं। Philippians 2:5 says, वो फिलिपियो 2:5 बताता है, have an attitude of Jesus Christ. यीशु मसीह के समान स्वभाव रखें। Oh, what was the attitude of Jesus? और यीशु का स्वभाव क्या था? He was knowing he's going to be crucified. वो जानता था कि वो क्रूसित होने जा रहा But है, what did he do? लेकिन उसने क्या किया? He never worried about it. और उसने इसके लिए चिंता नहीं He की। never said, उसने कभी नहीं कहा Father, I'm worried. कि पिता मैं चिंतित हूँ, What is going to happen? क्या होने वाला है? He was knowing, और वो जानता था I will be कि crucified. मैं क्रूसित हो जाऊंगा। But after 2 days, third day, God will raise me back. लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर मुझे फिर से जीवित करेगा। God was knowing it. परमेश्वर जानता था, Jesus was knowing it. यीशु जानता था। God raised Jesus from the dead. परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से He जीवित was not discouraged. किया। और वो हतोत्साहित नहीं हुआ। He was not discouraged. हतोत्साहित नहीं हुआ वो। People of God, परमेश्वर के लोगों, we need to understand हमें समझने की आवश्यकता है। Satan will bring
the weapon of discouragement in your life. और शैतान उस हतोत्साहन के हथियार को आपके जीवन को नाश करने के लाएगा। Be of good cheer. तो आप हर्षित हो जाएं। God will encourage you with His परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको उत्साहित करेगा। Bible in your hands. आपके हाथ में बाइबल है That is logos. और ये लोगोस है It is a written word. और ये लिखित But वचन है। when you spend time in the Word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करते हैं even in the time of discouragement, और उस निरुत्साहन हतोत्साहन के समय में, oh, that time, उस समय God will speak to you with His Word परमेश्वर अपने वचनों से बात करेगा। and He will encourage you. वो आपको उत्साहित As करेगा। I told you, जैसे मैंने आपको my बताया, authority said, मेरे अधिकारी ने कहा it is not seen, the worries are not seen on your forehead. कि मैं आपके माथे पर चिंता की शिकन भी नहीं देखा। Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा God is bigger than the persecutor. परमेश्वर सताने वालों से बड़ा है। Are you being persecuted and discouraged by the people? क्या आप लोगों के द्वारा सताए गए? If all these things you have, और यदि ये सारी चीजें हैं the next weapon Satan will bring in your life. और अगला हथियार शैतान आपके जीवन में लेकर के आता है Depression, और अवसाद depression, अवसाद depression. अवसाद Many people, बहुत सारे लोग when they are depressed, और जब वो अवसाद में होते हैं they go to doctor. और वो चिकित्सक के पास जाते हैं And what the psychologists do with them? और मनोवैज्ञानिक उनके साथ क्या करता They है will give them the heavy medicine और उनको बहुत ही भारी दवाई देता so है that they can sleep well. ताकि वो अच्छे से सो जाए After the effect of that medicine is over, और जब उस दवाई का असर खत्म हो जाता है again the depression is taking over. फिर से अवसाद प्रबल हो जाता है Because depression is the weapon of Satan. क्योंकि अवसाद शैतान का हथियार है। Are you understanding me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? Depression is brought by Satan. और अवसाद शैतान के द्वारा लाया जाता है। He wants that people should be depressed. वो चाहता है कि लोग अवसाद में रहें That's why he do the operation over operation over operation so that people can be depressed in this और world. इसी कारण से वो और छल करता है और क्रिया करता है और छल करता है कि लोग अवसाद में आए। But be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो जाएं। Open with me मेरे साथ में the book of Psalm भजन संहिता and chapter 56 and verse 8. 8वीं आयत Bible says, बाल बताती है you number and record my wanderings, put my tears into your bottle, are they not in your book? भजन संहिता 56 के 8 में लिखा है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। What happens क्या हुआ? when you are depressed? क्या होता है जब आप अवसाद में होते हैं? You are roaming from one place to another, आप एक जगह से दूसरी जगह seeking पे the solution for your problem. आपकी समस्या का समाधान But को listen me carefully. ध्यान से सुने। Bible says, बाइबल बताती you है number and record my wanderings. और तू मेरे आंसू क्या क्या, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। And now put my tears into your bottle. मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले The first line, what did it say in Hindi? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रख। Aha! When you are depressed, you will be mare freeing. और जब आप अवसाद में होते हैं तब आप मारे मारे फिरते You हैं will be wandering. और आप यहाँ वहाँ जाते हैं You will be wandering from one place to other place, one person to other person, one thing to other thing, to please your life so that you can come out of the depression. आप एक स्थान से दूसरे स्थान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए। But I will suggest to you, लेकिन मैं आपको जो है सुझाव दूंगा when you will be depressed, जब आप अवसाद में रहें may God should not allow this depression to come into your lives. तो परमेश्वर ना करे कि वो इस अवसाद को अपने But आपके जीवन if में, you are in अनुमति दे। depression, लेकिन यदि आप अवसाद में रहें listen me carefully. ध्यान से सुने Go to your God, अपने परमेश्वर के पास who is keeping the record into his books about your wanderings. और वो अपनी पुस्तक में आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। Every record he has maintained. हर एक चीज का हिसाब वो रखता है। Deepak Daniel Pagare, दीपक डैनियल पगार from the time of his birth, और उसके जीवन के उसके जन्म से लेकर today 40th year of life, आज 28 साल इस जीवन के how many times Deepak Daniel Pagare wandered from one place to another place, one person to other person. और कैसे प्रमोद शेंडे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। Hallelujah. That is the proper revelation. God keeps the record of depression. और परमेश्वर अवसाद का हिसाब भी रखता है And he is keeping your
tears which are coming out in the time of और depression. वो अवसाद के समय में हमारे निकले हुए आंसू का हिसाब He will not leave और you. वो आपको नहीं He will छोड़ेगा, not forsake वो आपको you. नहीं त्यागेगा। That's why he said in the book of Isaiah 45th chapter 1 to 5 verses, I have hold on your right hand. और इसीलिए यशाया की पुस्तक 45:1 और 2 में जो है परमेश्वर ने इसके बारे में बताया। Oh, to his beloved son, that king, to him said, I have hold on your right hand. और अपने पुत्र के विषय में उसने कहा कि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। Oh, he was the king. और वो राजा था। Oh, who just helped to build the temple. और जो उस मंदिर को बनाने में सहायता Are करा। you building the temple of क्या God? परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं? Today, building of temple of God is not physical realm. और आज के समय में परमेश्वर का मंदिर बनाना वो शारीरिक रूप से नहीं है। I know there is a need of a building so that people can sit inside and worship God. मैं जानता हूँ कि एक भवन की जरूरत है जहाँ पर लोग बैठ करके परमेश्वर की आराधना करें। But spiritually, we have to build the house of the Lord. लेकिन आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर का If you are doing यदि so, आप ऐसा कर रहे हैं, oh, nobody will be, if depressions will be coming and people will be coming to depress you, but then God will hold your hand and He will take you to the other तो side. यदि आप ऐसा करें तो लोग आपके पास में आएंगे आपको अवसाद में डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को पकड़ के आपको अवसाद में जाने से बचाएगा। My time has gone. मेरा समय जा चुका है Last thing I'm going to speak. और अंतिम बात मैं बोलने वाला हूँ। Another weapon of Satan is debt. और एक और जो हथियार है वो है ऋण, उधारी। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So many people are facing this और problem. बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे हैं। Recently, banks have, they are giving another, another loan for people who have really been troubled financially in the time of pandemic. और आज के समय में जो है बैंक जो है वो उन लोगों को ऋण दे रहे हैं जो महामारी के समय में आर्थिक रीति से टूटे हुए At a very low rate of interest. बहुत ही कम प्रतिशत जो ब्याज है उस पर। But be of good cheer. लेकिन आप हर्षित हो जाए, God is the one who forgives your debts. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके ऋणों को, आपकी उधारी को चुकता करता है। And he had already paid on the cross of और Calvary. उसने कलवरी की क्रूस के ऊपर में पहले से चुकता कर दिया। Satan wants और शैतान ये चाहता है that you should be under the power of debt. कि आप उस उधारी के सामर्थ्य के नीचे दबे रहें। Satan wants that you should be serving the master called debt. और शैतान ये चाहता है कि वो आप उधारी नामक स्वामी की सेवा। That's why somebody said like that. इसीलिए किसी ने इस प्रकार से कहा। Devil is evil. और Debt is evil. और ऋण जो है वो दुष्टता है, वो ये बुरा है। Debt is bad. और ऋण जो है वो बुरा है। Debt is unpleasant. और उधारी जो है वो अप्रसन्नता है। And debt gives pain. और उधारी दर्द देता है। Debt brings unhappiness. और उधारी जो है वो दुखी करता है। And the best friend of debt is misery. और जो उधारी है उसका सबसे प्रिय मित्र जो है वो परेशानी है. परेशानी। Okay. When somebody has fallen into the debt, और यदि कोई व्यक्ति उधारी में होता है, oh, that person will become a person who is facing miseries in his life. और वो व्यक्ति जो है वो दुख को अपने जीवन में झेल रहा है। Are you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? God has not called you to be dragging on your knees. परमेश्वर ने आपको आपके घुटनों में रेंगने के लिए नहीं But बनाया। why God has called you? लेकिन क्यों परमेश्वर ने बनाया? Bible says in the book of Psalm chapter 97 and verse 10. और भजन संहिता 97:10 में परमेश्वर ने कहा, He delivers them out of the hand of the wicked. और वो दुष्ट के हाथों से उनको बचा करके लाता है। The wicked wants to keep you into the debt. और दुष्ट आपको हमेशा उधारी में रखना चाहता Oh, but God wants to deliver you from the hand of that debt. है। लेकिन परमेश्वर आपको उस उधारी के हाथ से छुड़ा कर लाना चाहता है। And He wants to give you the financial और breakthrough. वो आपको आर्थिक विजय देना And चाहता there is a good news. है। एक अच्छी खबर है, God never gives the loan. परमेश्वर कभी भी जो है वो ऋण नहीं देता है। God never gives the loan. परमेश्वर ऋण नहीं देता है, God gives the blessings. परमेश्वर आशीष देता है। And in that blessing, और उस आशीष में He will never add sorrows to it. और वो उसमें दुख कभी भी नहीं मिलाता। Are you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? God never gives the loans. परमेश्वर ऋण नहीं देता, But God gives the blessings. परमेश्वर आशीष देता है। But when God gives the लेकिन blessings, जब परमेश्वर आशीष देता है He will never add sorrow to it. तो उसके अंदर में दुख को नहीं If मिलाता। sorrows are तो यदि there, वहां पर दुख है, Satan is working into that. शैतान उसके अंदर में कार्य करता He wants to deviate your blessings to some other place. है और वो आपके आशीषों को किसी और क्षेत्र में डालने की But कोशिश be of करता good है। cheer. लेकिन आप हर्षित हो God जाएं। wants to deliver you from the hand of the enemy if it is in the form of debt.
debt. और परमेश्वर आपको उस ऋण के हाथ से छुड़ाना चाहता है। You must be knowing the very carefulness of the heart of God. आपको परमेश्वर के उस हृदय में जो आपकी चिंता करता है उसको जानना आवश्यक है। He made his only begotten son poor so that you shall become rich. उसने अपने इकलौते पुत्र को गरीब बनाया ताकि आप धनी हो जाएं। That's what is written in the 2 Corinthians chapter 8 and verse और 9. दूसरा कुरिन्थियों 8 के उसके 9 में लिखा हुआ है। What a God we are serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की He सेवा। made his own son poor so that you should become rich and you should be out of the debt. और उसने अपने इकलौते पुत्र को गरीब बनाया ताकि आप धनी हो जाए और आप उस ऋण में से बाहर निकल। You have to understand the heart of God. आपको परमेश्वर के हृदय को समझना। If you will not understand, यदि आप ना समझे, you will lose everything. आप सब चीज खो देंगे। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, God has called you to be the prosperous people. God has called you to be the people who will financially having the breakthroughs in your lives because He is not a person who gives the loan, but He is a God who blesses you abundantly. परमेश्वर ने आपको आशीषित व्यक्ति होने के लिए, एक संपन्न व्यक्ति होने के लिए बुलाया है ताकि आप अपने जीवन में हर एक प्रकार की आशीषों को बहुतायत के कारण से प्राप्त कर सकें। Are you ready क्या आप to fight against these weapons? क्या आप इन हथियारों के विरोध में कार्य करने के लिए तैयार हैं? Just recap all the इन weapons. सारे हथियारों को एक बार फिर से देखेंगे And against it, what God wants to do, I will let you know. वो परमेश्वर क्या करना चाहता है मैं आपको बताऊंगा। Against deception, और उस धोखा देने के विषय में God will give you a confidence. परमेश्वर आपको आत्मविश्वास देता He है। will say, वो कहता है, my son, मेरे बेटे, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, Do not be worried वो about. चिंता मत कर। Second thing, दूसरी बात, when you will have the distractions, और जब आपके पास में आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, then God will give you concentration by giving rhema through His word. तो परमेश्वर अपने वचन में रेमा के द्वारा से आपको वो ध्यान केंद्रित करने की सामर्थ्य देता है। When Satan will delay, और जब शैतान विलंब लेके आता है, then God will hasten. परमेश्वर जल्दी करेगा. जल्दी करता है, God will hasten. परमेश्वर जल्दी करेगा। He will send His angels. वो अपने स्वर्गदूतों को He will भेजेगा hasten your blessings to come और वो on your आपकी way. आशीषों को आपके पास में आने के लिए When जल्दबाजी Satan करेगा। will bring disappointment, और जब शैतान जो है वो निराशा को लेकर के आता God है, will bring gladness. परमेश्वर वहाँ पे आनंद को लेकर के Be आता of है good cheer. और आप हर्षित हो जाओ। God will bring, God will bring gladness. परमेश्वर वहाँ आनंद के भाव को लेकर के आता है। When Satan will bring discouragement, और जब शैतान हतोत्साहन को लेके आता है, God will encourage you by giving a promised word to you. परमेश्वर आपको वाचा के वचन के द्वारा से प्रोत्साहन देगा। What a God we are तो serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम कर रहे When हैं। Satan will put you into depression, और जब शैतान आपको अवसाद में लेकर के जाए, then God will give you a तो progress. परमेश्वर आपको जो है उन्नति देगा। And when Satan will put you into और debts, जब शैतान आपको उस उधारी में लेकर के जाता है, God will make you a prosperous person. परमेश्वर आपको संपन्न व्यक्ति बनाएगा। Would you like to fight against the powers of the enemy? क्या आप उस शैतान की उन सामर्थ के विरोध में लड़ना चाहेंगे? God wants to do a mighty work for your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक अद्भुत कार्य करेगा। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, how far you will be living a life of dragging. और कितना लंबा आप उस रेंगने वाले जीवन को जिएंगे। God has called you to be a blessed person. परमेश्वर ने आपको एक आशीष दी है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of तो पिता Jesus, यीशु मसीह के नाम I से have shared your heart to the मैंने people. आपके हृदय को लोगों से साझा किया है। These are the weapons which are working against your people and the और church. ये वो हथियार है जो आपके लोगों, आपकी कलीसिया के विरोध में कार्य करते हैं। All these weapons of the ये enemy. सारे जो हथियार जो शैतान के हैं, Any other weapon, oh God. और दूसरे भी जितने व्यक्ति, All these ये weapons. सारे हथियार, I break in the name of Jesus from the यीशु- lives of my dear और people. मेरे प्रिय लोगों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से इन सारे हथियारों को तोड़ता हूँ। Do an awesome work for your glory. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अद्भुत कार्य को Do कीजिए। an awesome work for your glory, Lord. परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अद्भुत कार्य को कीजिए। Right now, इसी समय all these weapons of the ये enemy, सारे शैतान के जो हथियार I हैं, take out from the lives of the people मैं लोगों के जीवन से इसको and निकालता I हूँ। crucify them on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर में उसको टांगते हैं। I release them in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उनको स्वतंत्र करते हैं। Blessings of God, परमेश्वर की आशीष हो, blessings of God, परमेश्वर की आशीष हो, और gladness, उस आनंदमय भाव को और richness, संपन्नता को and encouragements, और प्रोत्साहन को and happiness, Lord, और उस खुशियों को परमेश्वर confidence, और आत्मविश्वास को concentration on the rhema of word. और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने All के लिए these things सारी चीजों
against the weapons of the enemy. शैतान के हथियारों I को release मैं इन सब को for your छोड़कर people आपके लोगों को in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम In से, Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से receive your portion अपने भाग to को destroy the power of the और enemy. शैतान की सामर्थ को नष्ट करने के Bible says बाइबल बताती है in 2 Corinthians chapter 10 and verse 4, दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में our weapons are not carnal one, और हमारे जो हथियार है वो शारीरिक रीति से नहीं है but they are spiritual लेकिन वो weapons. आत्मिक हथियार है। Lord, just give your spiritual weapons to your people right now to परमेश्वर kill all the plans and strategies and weapons of enemy in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को वो आत्मिक हथियार दे ताकि वो शैतान की सामर्थ्यों को नष्ट करने के लिए Put on the armor of God. परमेश्वर के हथियारों को बांधो। Put on the armor of God. परमेश्वर के हथियारों को बांधो। I see मैं देख पा you are standing like a soldier. आप एक सिपाही के समान Put खड़े हैं। on all the armors of God, परमेश्वर के सारे हथियारों को and लिए you are standing against the power of the enemy, और उस शत्रु की सामर्थ के विरोध में weapons of the enemy. परमेश्वर के शैतान के हथियारों के In विरोध Jesus' name, यीशु के नाम में। in Jesus' name, यीशु नाम। you shall break the weapons of the enemy for the glory of God in Jesus' name. आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए शैतान के उन सारे हथियारों को तोड़ देंगे। For this reason, इसी कारण I release your life मैं आपके जीवन को स्वतंत्र करता हूं so that you can destroy the powers of enemy, the weapons of enemy in Jesus' name. ताकि आप यीशु मसीह के नाम से शैतान की उन सारी सामर्थ्यों को तोड़ सकें। Thank you, Lord, for doing it, oh Father. धन्यवाद पिता से करने As you won the death from the के लिए। cross, और जैसे आपने उस सारे कर्जे को उस कलवरी की क्रूस के ऊपर चुकता किया all the people who are under the threatening of that debt, और हर एक व्यक्ति जो उस उधारी के भय के अंदर में है खुदा I release them, Lord. उन सबको स्वतंत्र करते हैं। They're the people from whom they have borrowed. परमेश्वर वे लोग जिनसे उधार लिया है Lord, in Bible it says, बाइबल बताती है the person who will lend the money, और वो व्यक्ति जो पैसा उधार देता है, देता है oh, he will be mastering people. और वो स्वामी व्यक्ति है। But I break that mastership from the neck of Christians and the church in Jesus' name. लेकिन मैं कलीसिया और मसीही लोगों के गर्दन के ऊपर से उस स्वामित्व स्वभाव को हटा देता हूँ। And Lord, I just put your yoke, which is very easy and light. वो परमेश्वर आपका जुआ हम रख लेते हैं जो बहुत सहज और हल्का है। All that poverty shall go away, debt shall go away. हर एक गरीबी हर एक उधारी वो चला जाए And Lord, they shall become prosper in Jesus' और name. वो यीशु मसीह के नाम से संपन्न I हो। speak prosperity to the church in India and in every nation of the और world. मैं भारत की कलीसिया के लिए और संसार की हर एक कलीसिया के लिए उस संपन्नता को मांगता Receive. हूं। ग्रहण करो। Receive your portion in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से अपना भाग ग्रहण No more depression. करो। और कोई अवसाद नहीं No more distraction. कोई और ध्यान विघटन करने वाला नहीं No होगा। more, deception. हर और कोई भी एक धोखा नहीं होगा No more delays. कोई भी विलंब नहीं And no more और कोई debts. भी उधारी नहीं। And no more weapon of the enemy shall work against the church and the people of God. और शैतान का कोई भी हथियार कलीसिया के विरोध में या विश्वासियों के विरोध में I कार्य नहीं। decree and declare, घोषणा करते हैं आदेश church देते shall explore हैं, कलीसिया जो है बढ़ spiritually, आत्मिक रूप से, mentally, मानसिक रूप से, physically, शारीरिक रूप से, financially, आर्थिक रूप से, socially, सामाजिक रूप से, nationally, राष्ट्रीय रूप से और अंतर्राष्ट्रीय internationally, रूप से खुदा and in every nation. हर एक राष्ट्र के अंदर Church shall be over the government of the nation for the glory of God, because it is the plan of God from the kingdom of God, and the kingdom government of God shall rule every nation in Jesus' name. और हर एक राष्ट्र के अंदर में कलीसिया जो है वो सरकारों से ऊपर हो जाए क्योंकि परमेश्वर का हर एक राष्ट्र के लिए यही योजना है। Thank you, Lord, for doing it, oh धन्यवाद Father. पिता से करने के लिए। Giving you all the glory. सारी महिमा आपको दूं। Thank you for blessing your धन्यवाद people. अपने लोगों को आशीष देने के Thank you लिए for blessing the body of Christ. और मसीह की देह को आशीष देने के In लिए every nation, हर एक राष्ट्र में church shall take over the position, वो कलीसिया अपने उस पद को ले ले and it shall direct the government of the nations to work properly according to the heavenly kingdom government. और वो हर एक राष्ट्र की सरकारों को निर्देशित करे कि स्वर्गीय सरकार के अनुसार कैसे काम In Jesus' name, Lord, यीशु नाम में I decree and declare it घोषणा करता हूँ to आदेश happen in Jesus' name. ऐसा होने के लिए Thank you for doing it, oh धन्यवाद Father. पिता से करने के Giving you all glory. लिए। सारी महिमा आपको In Jesus' दें। name यीशु I नाम से pray. प्रार्थना मांगते हैं Amen. आमीन And और amen. आमीन।
Let us say the Lord's Prayer, आइए and प्रभु with the की- benediction we will close it. प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचनों के साथ में हम समाप्त करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to break down the weapons of enemy in Jesus' name. Amen and amen. Stay blessed. और आशीषित रहें Stay tuned with और us. हमसे बने रहें Very soon we'll be back. और बहुत जल्द हम वापस May आएंगे। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।